چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ اٹلی. اٹالین آرمی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف، چیف آف ایگزیکٹو آفیسر اور اٹلی کے وزیر دفاع سے ملاقاتیں. جیو اسٹریٹجک ماحول، دفاع اور سلامتی کے شعبوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. صاحب نے پھر دہرایا کہ ہم نے ایک دروازہ کھولا تھا مذاکرات کے ذریعے، ایک موقع دیا تھا اس نظام کو، اس تاریک نظام کو، اس جھوٹ اور فریب پر مبنی نظام کو کہ وہ اپنی درستگی کرے. اس لیے ہمارا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ ہم کسی چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے. خان صاحب نے کہا کہ میری فی الفور ملاقات کرائی جائے مذاکراتی کمیٹی سے. بانی پی ٹی آئی کا 28 جنوری سے قبل مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ. پی ٹی آئی کا ایک بار پھر 28 جنوری کی نشست میں بیٹھنے سے صاف انکار. مذاکراتی ٹیم سے بانی پی ٹی آئی ملنا چاہتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے تو پھر شاید مذاکرات کا کوئی راستہ نکل آئے. مذاکراتی ٹیم کو بانی سے نہ ملنے دیا تو مذاکرات نہیں ہوں گے. بانی پی ٹی آئی نے فریب پر مبنی نظام کو ایک اور موقع دیا. عدالتی کمیشن نہ بنا تو مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے. ہمارے کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے. سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس. ہم پر ظلم ہوا پھر بھی بانی نے کہا بات چیت ہونی چاہیے. بدنیتی کی بنیاد پر مذاکرات میں بہانے کیے گئے. یہ نہیں چاہتے عوام 9 مئی کی حقیقت جانے. اب بھی وقت ہے، کمیشن بنا دیں، عوام ویلکم کریں گے. اس حکومت کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے. سینیٹر شبلی فراز. بڑی فراخ دلی سے ہم نے یہ شروع کر لیے تھے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا جو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کوئی کمیشن بنانے کا. کمیشن نہیں بنتے جا رہا تو ہم حکومت کے ساتھ صرف ہائے ہلو اور فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں بیٹھنا تھا. ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا. جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. حکومت کی کمیشن بنانے کی کوئی نیت نہیں. کمیشن نہیں بنتا تو ہم نے حکومت کے ساتھ ہیلو ہائے اور فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں بیٹھنا. ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. تحفظات کے باوجود ہم مذاکرات میں نیک نیتی سے بیٹھے. مسائل بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو. بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا. جنید اکبر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر مقرر. جنید اکبر گزشتہ روز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہوئے تھے. بانی پی ٹی آئی کی سلمان اکرم راجہ کو جنید اکبر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت. جنید اکبر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں میں بھی شامل. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکو وہ خود نکلا جس نے 190 ملین پاؤنڈ جو 64 ارب روپے بنتے ہیں جو پاکستان کے خزانے میں جمع ہونے چاہیے تھے. ہر پی ٹی آئی کے ووٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا گریبان پکڑے. اگر وہ پیسہ سرکار کے خزانے میں آتا اس سے سینکڑوں اسکول اور ہسپتال بن سکتے تھے. بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کی ڈکیتی کی. کیا چوری کے پیسے سے مسجد اور مدرسہ بن سکتا ہے؟ 64 ارب روپے ملکی خزانے میں جمع کروائے ہوتے تو کئی کالجز اور یونیورسٹیز بن سکتی تھی. پی ٹی آئی والے اسمبلی میں شور مچانے کی بجائے اپنے لیڈر کا گریبان پکڑے. ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کر دیا ہے. حکومتی اقدامات کی بدولت مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی. سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا ہے. دوست ملکوں سے تعلقات بحال ہوئے. بانی پی ٹی آئی نے ملکی ترقی کا سفر روکا. پی ٹی آئی دور حکومت میں مہنگائی میں اضافہ ہوا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. ضلع کرم میں امن لانے کے لیے مشران کا حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان. بنکرز کے خاتمے اور اسلحہ جمع کرنے پر تمام مشران راضی. شرپسندوں کے خلاف کارروائیوں میں حکومت سے مکمل تعاون کا وعدہ. پہلے سے طے شدہ امن معاہدے کے تمام نکات پر ہر صورت عمل کیا جائے. کرم میں امن و امان کے لیے کوہاٹ میں 3 گھنٹے طویل گرینڈ جرگہ. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت. فریقین سے عمائدین اور 80 سے زائد مشران کی بھی شرکت. کرم کا امن لوٹا کر رہیں گے. امن کی خاطر کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. بنکرز کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو رہا ہے. ضلع بھر میں شرپسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری نے جرگے سے خطاب کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں
वहाँ पर आम आदमी की ज़िंदगी का चैन ख़त्म हो चुका है। जो इलाके हमारे किसी ज़माने में अमन के गहवारे थे और वहाँ का अमन बतौर मिसाल पेश किया जाता था, आज वहाँ से वहशत लगती है। किसी सूरत भी जुल्म और जबर के साथ नहीं। कबाइल और मुशीरान से गुजारिश है कौम आपस में ना लड़े, कबाइली अमायदीन की आवाज़ को सुना जाए। मौलाना का मुतालिबा। केपी में अमन है ना हुकूमत। रियासत का काम है अमन अमान बहाल करे, हुकूमत बताए अमन के हवाले से उनका एजेंडा क्या है। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, ताकत से दहशतगर्दी बड़ी है। 26वीं तरमीम पीटीआई के वोट से मंजूर हुई थी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। Yet with the rapid progress comes a set of challenges we cannot ignore. Data privacy, digital misinformation, cyber crimes, these are the battles of our time. Sindh is a land of extraordinary beauty and resilience, but it is also on the front lines of the climate crisis. डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स आज के चैलेंजेस हैं। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंज का भी सामना है। हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। हमारी तामीरात भी माहौलियाती तब्दीली के असर को देखते हुए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में इंजीनियर्स का अहम किरदार है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत होनी चाहिए थी। ऐसा कानून बनाया जाता जिस पर तमाम फरीकैन मुत्तफिक होते। इत्तफाक के बाद हुकूमत की जानिब से जो चीज़ आती वो ज़्यादा बेहतर और अच्छी होती। पीका एक्ट को सहाफ़ती तंजीमें नहीं मानती तो ये बिल्कुल गलत बात है। हुकूमत को चाहिए था पहले मुशावरत फिर कानून साज़ी करती। जिसका जो दिल करता है सोशल मीडिया पर लिख देता है, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 27वां कॉन्वोकेशन। पहले सेशन में 582 तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद की खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को मेडल से भी नवाजा गया। 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर, 27 तलबा को ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। एक तालिब इल्म को रोल ऑफ ऑनर और एक को मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। लैंग्वेजेस और लिटरेचर फैकल्टी के 135, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के 264 तलबा में डिग्रियां तकसीम। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के 112, इंजीनियरिंग के 71 तलबा डिग्रियां हासिल करने वालों में शामिल। कॉन्वोकेशन की 2 रोज़ा तकरीबात में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 2223 स्टूडेंट्स को डिग्रियों से नवाजा जाएगा। 251 तलबा को मेडल्स और 23 को PhD की डिग्रियां दी जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने तलबा से खिताब में कहा, तलबा अपनी ज़िंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप्स के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज फराहम किया जाएगा। तलबा ने UCP को बेहतरीन तालीमी इदारा करार दे दिया। कॉन्वोकेशन में डिपार्टमेंट्स के हेड्स और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। वो काम कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो बदतमीजी हो रही है, बदजबानी हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। चीफ मिनिस्टर के तमाम मंसूबे जो हैं वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और वो इफ्तिताह करने नहीं आती। जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, मरियम नवाज के मंसूबे तब से शुरू होते हैं। और ये मंसूबे इतने ना किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ना शुरू किए। कोई सियासी जमात या शख्सियत रियासत को नहीं झुका सकती। शायद PTI ओपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर नया एडवेंचर करना चाहती है। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हुई तो कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए सबको एक मौक़िफ़ पर आना होगा। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफज़दा हैं। एक तरफ खिदमत की और दूसरी जानिब इंतशार की सियासत हो रही है। फितना फसाद
फितनावाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। फितना पार्टी ने किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मरियम नवाज सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह नहीं, अमल भी करती हैं। इतने मंसूबे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने शुरू नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, 2 ज़ख्मी। हलाक होने वालों में खवारिज के सरगना अजीज़ुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और मुखलिस शामिल। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। ISPR सदर आसिफ अली जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। हमास ने 4 इसराइली ख़वातीन फौजी। इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी यरग़मालियों को रिहा कर दिया। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को वापस मगरबी किनारे पहुंचा दिया गया। मगरबी किनारे में पुरजोश शहरियों की जानिब से कैदियों का शानदार इस्तकबाल। तमाम फ़लस्तीनियों को जेलों से रिहा कर दिया गया। हमास ने 4 इसराइली यरग़माली ख़वातीन फौजियों को रिहा किया। इसराइली यरग़माली को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। 26वीं तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ लिखा। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। जजों की तादाद बहुत कम है। इस वक्त 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 13 जजेस हैं। 2023 में पूरे मुल्क में 17 लाख मुकदमात का फैसला किया। अदालतों में मुकदमात आज भी वैसे ही पड़े हैं। हमें साइलिन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीक़े अपनाने पड़ेंगे। ज़्यादातर मसाइल वुकला की वजह से हैं। मुकदमात के फैसलों से ताख़ीर होती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। श्रीलंका में सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फ्राहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है।